Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of grade 8 and 9, I welcome you in my fifth video of Unit 2. ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको जितना वीडियोस में काम करवाया गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने उसको लर्न किया होगा, स्पेशली ग्रामर एक्सरसाइजेज. ठीक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं पेज 22 पे. वो है एक्सरसाइज ऑफ एंटीसीडेंट. ठीक है, किसका? एंटीसीडेंट का. लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि एंटीसीडेंट है क्या चीज़. Antecedent. The word or words a relative pronoun refers to is called antecedent. Antecedent क्या है कि जब हम कोई वर्ड या जो वर्ड्स होता है और इसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो प्रोनाउन जिस वर्ड की तरफ इशारा करता है वो उसका एंटेसिडेंट होता है. यानी प्रोनाउन जिस वर्ड की तरफ इशारा करता है या जिस वर्ड के लिए इस्तेमाल हुआ है वो उसका एंटेसिडेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर वॉज अ बॉय हु वॉज वेरी इंटेलिजेंट. अब यहाँ पे पहले देखें कि हमारे पास प्रोनाउन क्या है. हु इज़ द रिलेटिव प्रोनाउन and this relative pronoun is referring to the boy. So boy is the antecedent of who. Okay, now the second example, which is, yesterday I saw a car which was really old. In this example, which is a relative pronoun, and this pronoun is used for, or this is referring to the car. So car is the antecedent of this relative pronoun. Okay, now exercise D, page 22. Underline the pronoun in each sentence below. Circle the antecedent the pronoun refers to. यहाँ पे आपने दो काम करने हैं, यानी अंडरलाइन करना है प्रोनाउंस को और सर्कल करना है एंटेसिडेंट को. ओके, द फर्स्ट सेंटेंस, साइमा वॉक टू द पार्क. शी enjoyed jumping on the trampoline. First we have to find the pronoun. So the pronoun is she. She is the pronoun, and this she is referring to this noun Saima, and this noun is this noun Saima is the antecedent of she. Okay, so you have to underline she and circle the antecedent Saima. Second example, Shama loves to walk on the beach. She watches the sunset often. In this sentence, she is the pronoun and it is referring to Shama. So underline she and circle Shama because Shama is the antecedent. Number 3, Dawood enjoys playing basketball. He knows that it is his favorite sport. Here the relative pronoun is he, and this he is referring to Dawood. So Dawood is the antecedent. Circle the antecedent Dawood and underline the pronoun he. Now statement number 4. Abrar, Jamal and Manan enjoy playing cricket. They love teamwork. Here they is the which? They is the pronoun. Yes, they is the pronoun, and this they is referring to Abrar, Jamal and Manan. So Abrar, Jamal and Manan is the antecedent. Okay, so circle these three words Abrar, Jamal and Manan and underline they. Number 5, the shopper couldn't find his car. The shopper couldn't find his car in the parking lot. So here his is the
pronoun and shopper is the antecedent. So underline his and circle shopper. मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो एक्सरसाइज है इसकी समझ आ गई होगी और ये एक्सरसाइज भी आपने अपनी बुक पर ही करनी है, ठीक है। Now dear students, here we are having a new topic, anaphoric and cataphoric reference. First let's see what are anaphoric and cataphoric references. Anaphoric reference. Anaphoric reference means that a word in a text refers back to the other ideas in the text for its meaning. Refers back. एनाफोरिक रेफरेंस में क्या होता है? इस रेफरेंस में जो हमारे पास एंटेसिडेंट होता है वो प्रोनाउन के बैक पे होता है, ठीक है, यानी प्रोनाउन के बैक पे एंटेसिडेंट होता है और इस काइंड ऑफ रेफरेंस को कहते हैं एनाफोरिक रेफरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। आलिया इज़ अवर टीचर, शी इज़ माई नेबर। Alia is our teacher, she is my neighbor. Here we want to know the details about she, that who she is. We came to know that she is Alia. She is Alia. Okay? And this Alia is the antecedent of this pronoun she. And as we can see that Alia is at the back of she, or the antecedent Alia is at the backward, so this kind of reference is called anaphoric reference. देखिए कि आलिया जो है वो इस प्रोनाउन के बैक पे है, यानी आलिया के बारे में, इस शी के बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये शी किसकी तरफ हमें इशारा कर रही है। ये शी हमें इशारा कर रही है, हमें बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं आलिया की, और आलिया कहाँ पे है? बैक पे है, हमें बैक पे जाना पड़ता है। तो इस किस्म के रेफरेंस को कहते हैं एनाफोरिक रेफरेंस। एग्जाम्पल नंबर 2, आई वेंट आउट विथ सना ऑन संडे, शी लुक्ड कन्फ्यूज्ड। यहाँ पे देखिए शी इज़ द प्रोनाउन एंड दिस प्रोनाउन इज़ यूज्ड फॉर सना एंड सना इज़ द, सो सना इज़ द क्या? एंटेसिडेंट। सना इज़ द एंटेसिडेंट और इस एंटेसिडेंट को देखने के लिए हमें बैक पे जाना पड़ रहा है, हमें बैक पे जाना पड़ रहा है, तो इसको कहते हैं एनाफोरिक रेफरेंस, ठीक है। यानी इस किस्म का रेफरेंस जिसमें एंटेसिडेंट बैकवर्ड पे होता है उसको हम कहते हैं एनाफोरिक रेफरेंस। इसी तरह अब हम देखते हैं इसी का अपोजिट कैटाफोरिक रेफरेंस है। कैटाफोरिक रेफरेंस, कैटाफोरिक रेफरेंस मीन्स that a word in a text refers to another idea later in the text and you need to look forward to understand. यानी देख रहे हैं कि इसमें हमें कहाँ पे जाना पड़ रहे हैं? कैटाफोरिक रेफरेंस में हमें फॉरवर्ड जाना पड़ रहा है, हमें बैकवर्ड नहीं फॉरवर्ड जाना पड़ रहा है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं एग्ज़ाम्पल, व्हेन ही अराइव्ड अशरफ नोटिस्ड दैट द डोर वॉज ओपन। In this example, he is the pronoun and he is referring to Ashraf. So, Ashraf is the antecedent of he. Okay? Ashraf is the antecedent of he. अब हम जानना चाहते हैं कि ही कौन है, या इसकी डिटेल जब हम जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें आगे देखना पड़ रहा है। यानी एंटेसिडेंट जो है वो अशरफ आगे की तरफ है। इस किस्म के रेफरेंस को कहते हैं कैटाफोरिक रेफरेंस। यानी कैटाफोरिक में हमारे पास एंटेसिडेंट फॉरवर्ड साइड पे होता है, जबकि कैटाफोरिक में हमारे पास कहाँ पे होता है? हमारे पास होता है एनाफोरिक में बैकवर्ड पे, कैटाफोरिक में कहाँ पे होते हैं? फॉरवर्ड में, जबकि एनाफोरिक में बैकवर्ड पे। यानी दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि
कैटाफोरिक में हमारे पास जो एंटेसिडेंट होता है वो फॉरवर्ड होता है। एनाफोरिक में एंटेसिडेंट कहाँ पे होता है, वो फिर बैकवर्ड साइड पे होता है। इस किस्म के रेफरेंस को कहते हैं कैटाफोरिक रेफरेंस, जिसमें जो हमारे पास एंटेसिडेंट होता है वो फॉरवर्ड पे होता है। ठीक है जी। नाउ एक्सरसाइज E. Exercise E is related to anaphoric or cataphoric reference. Page is 23. Question is, underline the references used in the last paragraph of the lesson and specify whether it is cataphoric or anaphoric reference. Dear student, this exercise is for your homework and you have to do this exercise in your test notebooks. यानी आपको अब कैटाफोरिक और एनाफोरिक का पता चल गया है। अब इसी को जहन में रखते हुए, उसी को याद करके, जो आपकी यूनिट है उसका जो लास्ट है, जो आपके पास जो लास्ट पैराग्राफ है, उसमें आप देखें कि उसमें किस किस्म का रेफरेंस यूज़ हुआ है और फिर इसको आप रेफरेंस को देखें, दोनों रेफरेंसेस को, और उसकी जहन में रखते हुए उसको याद करके फिर बताएं कि ये जो पैराग्राफ है पेज 15 पे, इसमें कौन सा रेफरेंस यूज़ हुआ है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर यूनिट 2. Students, I hope you have fully understood the exercises. Go to the practice of these exercises again and again in order to learn the exercise in a better way. Thank you. Stay blessed.